Hello everyone, welcome to iQuanta. I am Yogesh and many of you were asking me to make a video on updated IPMAT cutoffs for the year 2025 and you were asking to make a video on the cutoff of all the IPM colleges. So till IPMAT 2024 there were only 5 IIMs, right, which had the IPM program. In 2025 2 new IIMs came in, IIM Shillong and IIM Amritsar for IPM, okay, and they have also been added to the list. And this year in 2025, they have also offered admission to students. So it is very important to know their cutoffs as well. I have brought up that as well in this video, okay. So one thing that every IPMAT aspirant searches for when they begin their IPMAT preparation is IPMAT cutoffs. And they do so because they want to know what should be my target score, how has the cutoff been in the previous years, so that they can at least gauge their performance in the mocks, right? कि मेरा जो score आ रहा है mocks के अंदर वो पिछले साल की जो IPMAT cutoff है उससे ऊपर है, नीचे है, ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है और कितना कम आ रहा है. इससे उनको एक आइडिया लग जाता है कि ओके मुझे एक सेफ स्कोर इतना लेकर के आना चाहिए. ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू एनालाइज कट ऑफ्स इन डेप्थ एंड मे बी यू कैन कम बैक टू दिस वीडियो एवरी टाइम यू हैव सम इश्यूज रिलेटेड टू द कट ऑफ. ओके, कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो प्रॉपरली अपनी कट ऑफ रिलीज़ करते हैं, कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो प्रॉपरली कट ऑफ रिलीज़ नहीं करते हैं. सो उनको भी मैं बताऊँगा. Watch this video till the end. You can share with your friends as well, okay, who are preparing for IPMAT 2026 and 2027. Okay, so let's go ahead. IPMAT cutoff 2025 for all the colleges, okay. And if you are watching this video as an IPMAT 2026 or IPMAT 2027 aspirant, we have come up with our full courses for both the years 26 and 27, and you can read the features of the course. The duration is till August 2026. And we have given this extended access because most of the syllabus of quantitative aptitude, logical reasoning, verbal ability, it is similar across all the management exams, IPM exams, BB exams, okay. So that is going to help you a lot. Fine. It covers all the exams like IPMAT Indore, Rohtak, JIPMAT, all other BBA entrances like SCT, NPAT, and in fact it also covers IIM Bangalore BBA DB preparation, IIM Kozhikode BMS preparation, okay. Next, there is a special non-math module which is designed for students who are weak at mathematics, those who left mathematics after class 10 and now they are being told to do NCERT from class 6 to 10 to build their base. If you do NCERT of class 6 to 10, if you start right now, you will take at least 3 months or maybe more to cover that entire portion of mathematics. I mean class 6 to 10 NCERT. So there is a shortcut for that. Whatever is relevant for IPMAT, we have filtered that and we have made a non-math module. If you do 2-3 videos daily from this particular module, you will be able to do entire NCERT mathematics of class 6 to 10 which is relevant for IPMAT within 3 weeks. Okay? So ये आपको काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर देगा अपनी प्रिपरेशन में, आप एफिशिएंटली तेज़ पढ़ पाओगे, ठीक है, उतना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा आपको, आपका टाइम बचेगा. लाइव क्लासेस हैं एंड वी हैव वेरी स्पेशल लाइव क्लासेस बिकॉज वी हैव इंटरेक्शंस. ओके, इट्स नॉट अ लाइव क्लास इन विच यू आर जस्ट लिसनिंग टू द टीचर इज सॉल्विंग एंड यू डोंट हैव टू टाइप देयर. ओके, you can directly speak. You can unmute your mic, ask your follow-up doubts in the class itself, and all the classes are also recorded, okay, so that even if you miss a class, you can check the recordings later any number of times. Then we have IPMAT books. So it's a physical books ka set, 7 books, and it has exercises, theory, examples, solutions, everything, okay. There are weekly tests. In fact, now we have converted weekly tests to daily quizzes, okay. So there's a daily quiz that we give you as a daily challenge. It has 15 questions, 5, 5, 5 each of quant, logical reasoning, verbal, and it has quality questions, okay. So if you do those 15 questions every day till IPMAT, you would have solved a lot of questions, a lot of variety of questions, and that increases your probability of getting the same particular question in the exam as well, okay. Then we come to practice. There's an online dashboard in which you can come and solve topic wise quizzes and there are solutions to that. 24/7 doubt solving on WhatsApp groups. So there's a WhatsApp group in which there are a lot of doubt solvers, students who have previously scored 99 plus percentile in CAT, okay. So they solve your doubts. You just have to take a picture of your question, doubt. It can be from any source, okay. किसी की भी book में से हो, material में से हो, mock में से screenshot लीजिए and you just put it there, okay. It is solved within 15 minutes. Then exam form updates are there. In February आपके forms आने लग जाते हैं, वो सब चीज़ें हो गई. Then full mocks. Okay, so there are full length mocks of IPMAT Indore, Rohtak, JIPMAT, and in fact we give you 5 mocks for all other BB entrances as well. Fine, based upon the latest pattern and solutions, and in fact there are video solutions in the mocks this year. Then IPMAT past papers in mock format, you can write IPMAT past papers as well with solutions. We have solutions to past papers as well, video solutions. And there's a 2026 crash course. Once you finish your board exams, we have a 40-45 days fast paced course in which we teach you 7 to 8 hours every day for your last minute preparation. Okay, it's a revision kind of course. Then interview preparation after the crash course. So we have mentors from IIMs who teach you and guide you
mentor you. In fact, they take your mock interviews. Okay, there are students from IIM Ahmedabad, there are students from IIM Kozhikode, IIM Indore as well, who converted IIM Indore IPM program previously, so they are there to guide you. So that's all about the IPMAT 26-27 full course. You can go for it. Okay, if you want to take it, you can visit our website and call on the numbers given. Let's go ahead. Let's come to the first college, the most famous college, IIM Indore 2025. ना इसकी कट ऑफ देखते हैं. IIM Indore has sectional कट ऑफ. पहली चीज़, a lot of students think कि मुझे बस IPMAT इंदौर कितने मार्क्स का होता है? 360 मार्क्स का होता है. इट हैज़ 90 क्वेश्चंस. बच्चों को लगता है कि हमें बस 360 में से जितनी कट ऑफ दे रखी है यहाँ पे उतना लेकर के आना पड़ेगा और मेरा हो जाएगा. ऐसा नहीं होता. दो टाइप्स की कट ऑफ होती हैं. एक होती है आपकी सेक्शनल कट ऑफ, एक होती है ओवरऑल कट ऑफ. सेक्शनल कट ऑफ इज दैट कट ऑफ जो आपको मिनिमम लानी ही लानी पड़ेगी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, सो दैट आपको उस कॉलेज से इंटरव्यू के लिए इन्विटेशन आए ना. आप इंटरव्यू देने जाओगे, फिर इंटरव्यू होगा, उसके भी मार्क्स जुड़ेंगे, है ना. देयर आर अदर कंपोनेंट्स एज वेल. सो IIM Indore हैज सेक्शनल कट ऑफ. IIM Indore एक्सेप्ट्स IPMAT इंदौर एग्जाम स्कोर. ठीक है, तो अगर आप IPMAT इंदौर एग्जाम देते हो तो आप IIM Indore में जा सकते हो, जहाँ पे आपके सेक्शंस होते हैं एग्जाम में. क्वांट शॉर्ट आंसर 60 मार्क्स का, क्वांट MCQ 120 मार्क्स का, वर्बल एबिलिटी 180 मार्क्स का. तीनों की सेक्शनल टाइम लिमिट भी होती है. बट जनरल इन 2025 हैड टू स्कोर एटलीस्ट 24 आउट ऑफ 60 इन दिस सेक्शन. ओके, शॉर्ट आंसर. Out of 120, general had to score, general candidates, okay, general category candidates, 28 marks out of 120, which is very low. And 180 में से verbal में लाना था 112 for general candidates, and बाकी categories आप अपनी cut off पढ़ सकते हो. अगर आप इतना मिनिमम नहीं लाओगे किसी भी सेक्शन में, एक मार्क्स भी कम अगर लेकर के आप आगे, सपोज आपका यहाँ पे instead of 24 you get 23 here, you're out of the process of IIM Indore. IIM Indore में नहीं जा पाओगे IPM के लिए, बिकॉज आपने उसकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं करी है. तो मिनिमम इतना होना चाहिए हर सेक्शन में एज पर 2025. एंड आपका जो ओवरऑल टोटल होता है वो भी अच्छा होना चाहिए. देखो, सिर्फ मिनिमम कट ऑफ क्लियर करने से आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गए, है ना. बट वो बच्चे जो टेस्ट में ज़्यादा स्कोर लेकर के आते हैं, जो इंटरव्यू भी अच्छा देते हैं, बाद में उनको प्रेफरेंस मिल जाती है, बिकॉज उनका टोटल अच्छा होता है कॉम्पोजिट स्कोर व्हेन यू एड योर टेस्ट स्कोर एंड इंटरव्यू स्कोर, है ना. सो ट्राई कीजिए कि कट ऑफ तो क्लियर कीजिए मिनिमम, उससे ज़्यादा मार्क्स लेकर के आइए, सो दैट अगर आपका इंटरव्यू थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाता है, बहुत अच्छा नहीं जाता है, तो भी आपका टेस्ट स्कोर जो आया है IPMAT इंदौर का वो आपको बचा ले. ठीक है. क्या फिर अगर मेरा सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो तो क्या कोई भी कॉलेज मुझे कॉल नहीं करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता. कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ इन तीनों सेक्शंस का टोटल देखते हैं, उन्हें कट ऑफ से, सेक्शनल कट ऑफ से ज़्यादा मतलब नहीं होता. दे जस्ट कैलकुलेट योर टोटल इन ऑल 3 सेक्शंस एंड वो टोटल स्कोर के अकॉर्डिंग फिर मेरिट लिस्ट बना करके कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए. ठीक है. Okay, so other categories can read their cutoffs, and now you need to get the above minimum scores in each section to get the interview call. Okay, मैंने बता दिया. If you miss your category cutoff in any section even by 1 mark, you'll not be getting interview call from IIM Indore. Now let's talk about safe score. What is the total in all 3 sections? अगर आप minimum cutoff clear करते हो, suppose you clear the minimum cutoff, 24 आपका आता है यहाँ पे, 28 यहाँ पे, 112 यहाँ पे, तो टोटल कितना हुआ? टोटल becomes 164, राइट. तो क्या 164 पे आपका एडमिशन हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है. In IIM Indore, we have 150 seats. Around 800 students are called for the interview, 800 plus. And 800 में से अगर 150 select हो रहे हैं तो 650 बाहर भी जा रहे हैं. Why are they going out? Because वही इशू होगा कि बॉर्डर लाइन मार्क्स पे होंगे एकदम, है ना. इंटरव्यू भी अच्छा नहीं गया उतना, है ना. तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए? कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आने चाहिए ताकि आप और ज़्यादा सेफ रहो. ठीक है. तो एक सेफ स्कोर क्या होगा जनरल के लिए? आई जनरली सजेस्ट कि भाई अगर आपका टोटल 164 बन रहा है तो इससे 40-50 नंबर ज़्यादा ले लो, यानी कि 210-20 अगर आप ले आते हो वो तो फिर भी सेफ स्कोर कंसिडर हो जाएगा आपका, है ना. तो ये चीज़ हो गई. दूसरा, क्या कट ऑफ्स इतनी रहती हैं हर साल? नो, कट ऑफ्स चेंज एवरी ईयर. ओके, कट ऑफ्स डिपेंड अपॉन कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कैसा है. सपोज एग्जाम इस बार बहुत डिफिकल्ट आ गया तो मुश्किल हो जाएगा बच्चों का स्कोर करना यहाँ पर, है ना. तो बच्चे कम नंबर लेकर के आएंगे तो कट ऑफ ड्रॉप होती है. एंड अगर बहुत ईजी पेपर आ गया, सारे बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो स्कोर ज़्यादा लाएंगे तो कट ऑफ भी हाई जाती है. तो कट ऑफ हर साल स्टैटिक नहीं रहती है, चेंजेस एवरी ईयर, है ना. बट अगर आप ओवरऑल पिछले 5 साल का डेटा देखोगे तो कट ऑफ इसी रेंज में चल रही है, 164 से लेकर के कुछ 170-180 इसकी रेंज में, है ना. तो एटलीस्ट 50% तो आपको यार लाना ही है टोटल का 360 का. 180 एम करिए कम से कम, सो दैट आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए. सेकेंड, डू नॉट फॉल इन लव विद वन सेक्शन. कुछ बच्चे सिर्फ क्वांट या वर्बल ही करते रहते हैं. क्वांट भी करनी है, वर्बल भी करनी है. और इनफैक्ट ऐसा हुआ था इस बार कि क्वांट में जनरली अरिथमेटिक के क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, इस बार अरिथमेटिक के क्वेश्चन कम हो गए 2025 में. ज्योमेट्री के क्वेश्चन हर साल कम आते थे, 2025 में ज़्यादा हो गए. तो क्या हुआ? एक तरीके की एनोमली आ गई, यानी कि ऐसा होता नहीं था कभी कि भाई अरिथमेटिक के क्वेश्चन कम हो जाए, बिकॉज अरिथमेटिक बहुत बड़ी यूनिट है आपकी, है ना. बट इस बार शॉक लग गया, है ना.
ज्योमेट्री क्वेश्चन ज़्यादा आ गए। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आपको क्या करना चाहिए, सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ के जाने चाहिए, सो दैट अगर एग्जाम में कोई कम वेटेज का टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए तो भी आप अच्छा कर पाओ। एंड सेकंड, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भाई क्वांट अच्छा कर लेते हैं बट वर्बल की कट ऑफ नहीं निकाल पाते, तो भी वो बाहर हो गए। कुछ ऐसे होते हैं जो वर्बल की कट ऑफ निकाल लेते हैं लेकिन क्वांट की निकाल पाते, तो दोनों पे अच्छा होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ दैट्स ऑल अबाउट द IIM इंदौर IPM 2025 कट ऑफ सेक्शनल कट ऑफ। ओके, अब इसका और डेप्थ में एनालिसिस करते हैं। मैं IIM इंदौर की कट ऑफ में ज्यादा टाइम स्पेंड करवाऊंगा आपको, एंड देन आगे की कॉलेज की कट ऑफ हम फटाफट कवर कर लेंगे। ओके, नाउ देयर इज वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट इज ATS। तो कई बार आपने टर्म सुना होगा कट ऑफ में, ATS एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर। ये कैसे निकलता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। बेसिकली ATS गिव्स यू द कंपैरेटिव स्कोर, योर कंपैरेटिव स्कोर विद द टॉपर एंड द लीस्ट स्कोरर। जैसे जो एग्जाम आप दे रहे हो IPMAT इंदौर, इसका एक टॉपर भी होगा, उसके कुछ नंबर आए होंगे हाईएस्ट, एक लोएस्ट स्कोरर भी होगा। तो आपके जो मार्क्स हैं वो लोएस्ट स्कोरर और हाईएस्ट स्कोरर के कंपैरिजन में कहाँ पे है, इसका जो मेजर होता है दैट इज गिवन बाय ATS। ये उतना ज़्यादा वैसे देखा जाए तो कुछ खास फर्क नहीं डालता है, बट अगेन आई मीन ATS जो होता है ना, अच्छा ATS बनाने के लिए अगर आप तीनों सेक्शन में बढ़िया स्कोर करते हो आपका अच्छा ATS बनेगा। ओके, दूसरी चीज़, अगर आप मान लो क्वांट में नंबर कम लाते हो, वर्बल में बहुत अच्छे ले आते हो, तो भी आपका ATS अच्छा बन जाता है, बिकॉज क्वांट की कट ऑफ लोअर साइड पर रहती है जनरली, है ना, वर्बल की कट ऑफ हायर एंड पे रहती है। दूसरी चीज़, अगर आप ये देखो कि कितने स्टूडेंट्स ने इस बार इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, जो टोटल 818 शॉर्टलिस्ट हुए हैं, जिसमें से जनरल के कैंडिडेट्स हैं 301, बाकी कैटेगरीज के लिखे हुए हैं। एंड इनमें मिनिमम ATS कितना है, देखो जनरल में मिनिमम ATS है 41.5, ठीक है, एंड मैक्सिमम ATS है जनरल का 89। तो सबसे ज़्यादा ATS किसका है, मैक्सिमम ATS में जनरल का ही 89। 89 का ATS लाने के लिए आपको लगभग 280 मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो अगर आप टॉपर, जो ऑल इंडिया टॉपर है, उसका पक्का स्कोर 280 या उसके ऊपर ही होगा, ठीक है, आउट ऑफ 360। तो ये हो गया आपका बेसिकली ATS की अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको ATS कैलकुलेशन करना है अपना कि भाई 41 का ATS लाने के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए, तो आप एक काम करना, एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा टॉप पे, वहाँ जाकर के अपना ATS कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपको तीनों सेक्शंस में स्कोर डालना होता है एंड ATS कैलकुलेट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ATS इज दिस। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स कीप आस्किंग। ओके, बिकॉज सी आई एम एक्सप्लेनिंग हियर एंड आपको कुछ डाउट्स आएंगे डेफिनेटली, आप कुछ समझ रहे हो, कुछ नहीं समझ रहे हो, तो डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट्स, ठीक है। अब एक चीज़ ये भी है कि एप्लीकेंट्स हु सिक्योर्ड पॉजिटिव रॉ स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इन ऑल 3 सेक्शंस। देखिए, अगर आपका किसी भी सेक्शन में नेगेटिव मार्क्स आ गया IPMAT इंदौर के अंदर, तो आपको ATS भी नहीं मिलेगा फिर, है ना। ATS उन्हीं बच्चों का कैलकुलेट होता है जो मिनिमम हर सेक्शन में 1 नंबर या उससे ज़्यादा लेकर के आ रहे हैं, पॉजिटिव रॉ स्कोर लेकर के आ रहे हैं। तो इसे जनरल में इस बार अगर आप देखोगे तो फीमेल्स 5155, मेल 6977 इनका पॉजिटिव रॉ स्कोर था। एंड अगर आप देखोगे तो 12,132 ऐसे जनरल के स्टूडेंट्स जिनका पॉजिटिव स्कोर था, ठीक है, इन ऑल द 3 सेक्शंस, इसीलिए उनका ATS कैलकुलेट हुआ है। बाकी अदर कैटेगरीज में लिखा हुआ है। एंड टोटल 16,357 स्टूडेंट्स का पॉजिटिव रॉ स्कोर था, यानी कि कम से कम 1 नंबर उससे ज़्यादा इन ऑल द सेक्शंस, ठीक है। मिनिमम कट ऑफ मार्क्स इन ईच सेक्शन फॉर द वेरियस कैटेगरीज, ये मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ के बताया थोड़ी देर पहले। तो जनरल में 301 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है ना, फॉर इंटरव्यू, एंड बाकी कैटेगरीज का ये है। एंड दिस इज द कट ऑफ। ओके, बल्कि यहाँ पे ये भी दे रखा है इन्होंने कि जनरल में मेल्स और फीमेल्स ने कितना कितना कट ऑफ क्लियर किया, तो इस हिसाब से आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू रोहतक कट ऑफ। तो आई होप इंदौर की कट ऑफ आपको समझ में आ गई है। सेक्शनल कट ऑफ होती है एंड उसके ऊपर आपको अच्छा टोटल कट ऑफ भी बनाना होता है, कीपिंग द सेक्शनल कट ऑफ क्लियर। लेट्स कम टू IIM रोहतक कट ऑफ नाउ। सो IIM रोहतक डज नॉट हैव सेक्शनल कट ऑफ। यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ चलती है, यानी कि तीनों सेक्शंस का स्कोर एडअप होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश में कम ले आए तो भाई वो आपको कंसिडर नहीं करेंगे। अगर आपका टोटल अच्छा है तो आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। इट हैज़ ओवरऑल कट ऑफ। IIM रोहतक एक्सेप्ट्स IPMAT रोहतक एग्जाम स्कोर। नाउ IPMAT में ऐसा भी होता है कि जनरली बच्चों को तीनों एग्जाम्स देने चाहिए, IPMAT इंदौर, रोहतक, जिपमैट, खासकर उन स्टूडेंट्स को जिनको भाई IIM ही जाना है ना, आफ्टर 12th। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पहले से विजन क्लियर होता है कि मेरे को सिर्फ इंदौर में ही जाना है। अगर आपको सिर्फ इंदौर में जाना है तो आप सिर्फ IPMAT इंदौर दीजिए। अदरवाइज इफ़ यू वांट टू गेट इनटू एन IIM एनी हाउ, तो ये आपको सारे एग्जाम्स देने चाहिए, IPMAT रोहतक, जिपमैट भी, सो दैट यू हैव गुड बैकअप ऑप्शंस एज वेल, ठीक है। एंड योर परफॉर्मेंस इन वन एग्जाम डज नॉट अफेक्ट योर सिलेक्शन इन दी अदर कॉलेज। जैसे कि मान लो आपका IPMAT इंदौर उतना अच्छा नहीं गया बट रोहतक अच्छा गया, तो रोहतक में आप डेफिनेटली सेलेक्ट हो गए। रोहतक ये नहीं देखेगा कि आपका IPMAT इंदौर में कैसा स्कोर आया, आपको जज नहीं करेगा उसके बेसिस पे, ठीक है। दे विल एंटायरली जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस इन IPMAT रोहतक एग्जाम। एंड एक कॉलेज दूसरे कॉलेज के एग्जाम का स्कोर नहीं लेता। जैसे कि आपका इंदौर बहुत अच्छा गया है बट रोहतक उतना अच्छा नहीं गया, तो ऐसा नहीं कि रोहतक वाले आपको IPMAT इंदौर के बेसिस पे एडमिशन दे देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नाउ जनरल के लिए जो कट ऑफ थी, जो IPMAT रोहतक का पेपर होता है ये 480 मार्क्स का होता है। इट हैज़ 3 सेक्शंस,
क्वांट, वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो टोटल 480 का पेपर होता है। 480 में से जनरल की कट ऑफ इस बार थी 381, यानी कि टोटल ऑफ ऑल 3 सेक्शंस, है ना, टोटल स्कोर इन ऑल 3 सेक्शंस। बाकी कैटेगरीज का मैंने कट ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है। आई एम रोहतक कैलकुलेट्स टोटल स्कोर ऑफ ऑल 3 सेक्शंस एंड देन रोल्स आउट कट ऑफ अकॉर्डिंग टू द टोटल स्कोर। IPMAT Rohtak has 3 sections, each is of 160 marks, so it's an exam of 480 marks. Since IPMAT Rohtak exam has easy questions, cutoff goes high and scoring as much as possible is safe. अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर वैसे सेफ स्कोर कितना होगा। देखो, अगर कोई आपसे सेफ स्कोर बोल भी दे उसको मानिए मत, बिकॉज जितना ज़्यादा लाओगे आप उतना ज़्यादा सेफ हो गए आप, है ना। इसलिए तो देखो यहाँ पे 480 में से 380 कट ऑफ, यानी कि आप मान के चलो काफ़ी हाई होता है ना। तो ये क्यों इतना हाई है? बिकॉज पेपर इसका इजी होता है। तो IPMAT इंदौर का पेपर मॉडरेट या अबव मॉडरेट रहता है, बट रोहतक का पेपर इजी रहता है, क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व होते हैं, इजी होते हैं, ठीक है। दैट इज द रीजन रोहतक की कट ऑफ हायर एंड पे है। रांची की कट ऑफ, आई एम रांची IPMAT इंदौर का ही स्कोर एक्सेप्ट करता है, बस आपको अलग से इसका फॉर्म भर देना पड़ता है इसकी वेबसाइट पे जाकर के फेब के टाइम पे, जब भी इसके एप्लीकेशन ओपन होते हैं IPMAT इंदौर का एप्लीकेशन नंबर डाल दो, दे विल कंसिडर योर स्कोर फ्रॉम देयर। तो यहाँ पे भी क्या होता है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। ये IPMAT इंदौर के एग्जाम में आपका टोटल कितना है वो देखते हैं। तो जनरल को मिनिमम टोटल इस बार चाहिए था 177, NC OBC 120 एंड अदर कैटेगरीज का मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। आई एम रांची कैलकुलेट्स टोटल स्कोर ऑफ ऑल 3 सेक्शंस IPMAT इंदौर एंड रोल्स आउट कट ऑफ अकॉर्डिंग टू द टोटल स्कोर। आई एम रांची डज नॉट कंडक्ट एनी एग्जाम ऑफ इट्स ओन, इट एक्सेप्ट IPMAT इंदौर स्कोर्स। ठीक है, ये हो गई आपकी रांची कट ऑफ। बट अगेन, क्या इस कट ऑफ पे आपका हो जाएगा? रांची में 60 सीट्स हैं, तो करीब 300 बच्चे के आसपास इंटरव्यू के लिए जाते होंगे, है ना। आप मान के चलो अगर आप 177 से जितना ज़्यादा लेकर के आओगे उतना ज़्यादा सेफ आप रहोगे, ठीक है। इनफैक्ट कुछ कॉलेजेस होते हैं जो 10-12 के बेसिस पे भी आपको मार्क्स देते हैं डायरेक्टली। जैसे रोहतक काफ़ी मार्क्स देता है, रांची देता है, FT काकीनाडा देता है ना। तो 10-12 में भी अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो आपके चांसेस और इंक्रीज होते हैं आइम्स में सेलेक्ट होने के, बिकॉज आइम्स जो होते हैं जनरली प्रोफाइल बेस्ड चीज़ें करते हैं, प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शंस करते हैं ना। तो जितना अच्छा आपने परफॉर्म किया होगा टेस्ट में, इंटरव्यू में, 10-12 में, उतना फ़ायदा होगा। हाँ, IIM इंदौर में कोई डायरेक्ट वेटेज नहीं होता 10-12 का, तो ट्राई कीजिए कि अगर आपका 10-12 भी अच्छा होता है बहुत, एकेडमिक्स परसेंटेज 11th का नहीं 10-12th का, ओके, 10th एंड 12th, तो बहुत फ़ायदा होगा। इनफैक्ट अगर आपका 10th बिगड़ गया है तो 12th में अच्छा करो, क्योंकि 12th का जो वेटेज आपको मिलता है, 12th के जो फ्री मार्क्स मिलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, वो 10th के मार्क्स से डबल होते हैं। सपोज आपको 20 नंबर मिलने हैं 10th और 12th के स्कोर के बेसिस पे, परसेंटेज के बेसिस पे। अगर आपकी 90% 10th में है, सपोज आपको 7 मार्क्स मिल रहे हैं, तो आपको 12th में 90% होने पे जस्ट इसका डबल मिल जाएगा, समवेयर अराउंड 13-14, है ना। तो 12th की वेटेज ज़्यादा होती है 10th की परसेंटेज के कंपैरिजन में, ठीक है। IIM शिलोंग न्यू कॉलेज आया है, ये सिर्फ मैथ स्टूडेंट्स के लिए है। अभी तक हमने क्या देखा, इंदौर, रोहतक, रांची, ये नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए भी थे, बट IIM शिलोंग सिर्फ मैथ स्टूडेंट्स के लिए जिनकी 11-12 में मैथ्स है, चाहे वो अप्लाइड हो चाहे कोर हो। IIM शिलोंग है सेक्शनल कट ऑफ, भाई यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ होती है, बट बड़ी नॉन ट्रांसपेरेंसी कट ऑफ है, इसकी बताता हूँ कैसे। IIM शिलोंग एक्सेप्ट IPMAT इंदौर एग्जाम्स को, अपना अलग से एग्जाम नहीं कराता, ये भी IPMAT इंदौर ही लेता है। इस बार रीज़न ये था कि बहुत लेट आया IIM शिलोंग, है ना, इसके प्रोसेस बहुत लेट हुए सिलेक्शन के, और इन्होंने कट ऑफ में कोई ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। IPMAT इंदौर में 3 सेक्शन होते हैं, क्वांट, शॉर्ट आंसर, MCQ, वर्बल, 60, 120, 180 मार्क्स। अगर आपको IIM शिलोंग में शॉर्टलिस्ट के लिए एलिजिबल रहना है, देखो इन्होंने उन्हीं स्टूडेंट्स को कंसिडर किया जिनका कम से कम 20% या उससे ज़्यादा था, अगर वो अदर एंड EWS कैटेगरी। सब यहाँ कैटेगराइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर्स एंड EWS, SC, ST एंड DA। DA मतलब PWD, डिफरेंटली एबल्ड। SC, ST, PWD बहुत क्लियरली कैटेगराइज्ड है, बट OBC वगैरह जितने भी हैं बाकी, जनरल, OBC, EWS, सबको इन्होंने एक में डाल दिया है। इनफैक्ट शिलोंग में स्टेट की वजह से कुछ OBC कैटेगरी कंसिडर नहीं करते हैं वो लोग, है ना, वो जनरल OBC को सेम कंसिडर करते हैं। इनफैक्ट EWS को भी उन्होंने सेम कंसिडर किया हुआ है। तो अगर आपको देखो 60 का 20% कितना होता है, 12, 120 का 20% होता है 24, एंड 180 का 20% होता है 36। क्या आपको लगता है कि IIM शिलोंग, जो कि भाई अब लगभग इंडिया का सेकंड बेस्ट IIM होगा IPM के लिए, बिकॉज अच्छा खासा पुराना IIM है, 7th IIM है इंडिया का, प्लेसमेंट भी इसका 26.1 लाख पर एनम है, एवरेज सैलरी पैकेज। क्या आपको लगता है कि भाई ये इतने कम नंबर पे किसी को कॉल करेगा, जनरल को खासकर? नहीं। तो इतने मिनिमम तो होने ही चाहिए, तब जाकर के ये सोचेंगे कि भाई आपको कॉल करना चाहिए, है ना। दिस शुड बी द मिनिमम। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप 12 इसमें ले आओगे, 24 इसमें ले आओगे, 36 इसमें ले आओगे तो डेफिनेटली आपको कॉल आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। अगेन क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई भी आपको प्रॉपर स्टैट्स नहीं दिया है शिलोंग ने, अभी तक इनकी ना वेबसाइट पे है। इनफैक्ट जब बच्चों को मेल आया था तो भी उनको क्लियरली नहीं बताया गया था, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ भाई क्या सेफ स्कोर होना चाहिए शिलोंग के लिए, जनरली जो बच्चे मतलब एक तरीके से आई वुड से 180-90 के ऊपर थे जनरल में, उनको ईजिली कॉल आ गया था, ठीक है। शायद कम वालों को भी आया हो, बट एज फार एज आई नो 190 प्लस तो आपको लाना ही चाहिए शिलोंग के लिए। एंड हर सेक्शन में अच्छी खासी आपकी भाई सेक्शनल स्कोर्स भी होने चाहिए, ठीक है।
दूसरा, शिलोंग हैज़ द मोस्ट कंफ्यूजिंग एंड नॉन ट्रांसपेरेंट कट ऑफ क्राइटेरिया बिकॉज इवन आई कुड नॉट फाइंड इट ऑन द इंटरनेट, है ना. आई कुड एनालाइज कि भाई चलो ठीक है कितने के आसपास कट ऑफ जानी चाहिए. शिलोंग में क्या कि भाई नॉन मैथ स्टूडेंट सारे हट जाते हैं, है ना, सिर्फ मैथ्स वाले अलाउड रहते हैं. एंड दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो भाई अगर किसी का 60 में से 12 से भी कम आएगा वो भी हट जाएंगे, है ना, इजंट इट. देन MCQ में अगर किसी का भाई 24 से कम आ रहा है वो भी हट जाएंगे. वर्बल में तो भाई एक्सट्रीमली लो, मतलब 36 मार्क्स क्या होता है, मतलब 180 में से बहुत कम होता है, पासिंग भी नहीं हुआ है ना. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि भाई शिलोंग के लिए ज़्यादा लाओ बिकॉज इन्होंने कुछ ऐसे एग्जैक्ट डेटा नहीं दिया. वैसे इंदौर ने बिल्कुल एग्जैक्ट दिया हुआ कि वर्बल में इतना होना चाहिए, क्वांट में इतना, MCQ में इतना, है ना. ये प्रॉब्लम है शिलोंग के अंदर. दे गिव यू द मिनिमम कट ऑफ एट विच यू माइट गेट एन इंटरव्यू कॉल बट नॉट द एग्जैक्ट कट ऑफ मार्क्स. ये मिनिमम दे रखा है कि भाई इतना होगा तो तब आपको आ सकती है कॉल इंटरव्यू की, वरना कुछ फिक्स नहीं है. That means you have to score minimum % marks as given in the table above to be eligible for getting shortlisted, but getting that much does not guarantee a PI call, personal interview call. PI means personal interview, okay? So again, scoring as much as possible is safe. Since IIM Shillong allows only math students, cutoff might be lower than Indore. अब obviously मतलब पहली पसंद तो बच्चों की इंदौर ही रहती है, थोड़ा नीचे जा सकती है इसमें कट ऑफ, बट ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है. देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, बट होता ऐसा है कि भाई जब किसी कॉलेज में सीट कम हो जाती हैं, है ना, जैसे मान लो शिलोंग में अगर 60 सीट्स है तो कितनों को कॉल करेगा वो? 2000 बच्चों को तो कॉल नहीं करेगा इंटरव्यू के लिए. इट विल कॉल समवेयर अराउंड इंटू 5 मान के चलो, 300-350 बच्चों को कॉल करेगा, है ना. तो वो जो 300 को कॉल करेगा टॉप, जनरली भाई सारे इंदौर वाले बच्चे मैथ्स वाले अगर हैं वो भी अप्लाई करेंगे शिलोंग के अंदर, है ना. तो जो टॉप 350 जो कॉल जिनको कॉल आएगी इंटरव्यू के, उनके मार्क्स अच्छे खासे होते हैं, ठीक है. तो ये मत मान के चलना कि भाई इसकी कम ही जाएगी, इंदौर से ज़्यादा भी जा सकती है. जैसे कि एक कॉलेज है IFT काकीनाडा, उसकी कट ऑफ हमेशा इंदौर से भी ज़्यादा जाती है. इवन तो वो इंदौर जैसा इतना अच्छा कॉलेज नहीं है, बट उसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, इजंट इट. तो वो चीज़ आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, ठीक है. एंड शायद अगर फ्यूचर में इसका डेटा बाहर आया अच्छे से तो आई विल डेफिनेटली ब्रिंग इट अप, ओके, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. शिलोंग अच्छा खासा कॉलेज एडअप हो गया है. IIM बोधगया IPM 2025 कट ऑफ, ये थोड़ा एक ऐसा कॉलेज जिसने थोड़ी और ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है. IIM बोधगया हैज़ सेक्शनल कट ऑफ. अब ये इसकी सेक्शनल कट ऑफ भी थोड़ी अलग टाइप की है. IIM बोधगया एक्सेप्ट जिपमैट एग्जाम स्कोर, तो यहाँ जिपमैट के थ्रू जाते हैं. यहाँ पे लिखा है परसेंटाइल कट ऑफ फॉर टाइप 3. अब ये परसेंटाइल कट ऑफ यानी कि मिनिमम 70 परसेंटाइल तीनों सेक्शन में जनरल का होना चाहिए, ओवरऑल परसेंटाइल 76. जैसे आपको IPMAT इंदौर में क्या मिलता है, ATS और आपका टोटल स्कोर मिलता है ना हर सेक्शन में. यहाँ पे क्या होता है, आपको परसेंटाइल मार्क्स मिलते हैं. जैसे JEE वगैरह में आपने देखा होगा, CUET में देखा होगा, परसेंटाइल मिलती है. परसेंटाइल एंड परसेंटेज आर 2 डिफरेंट टर्म्स. परसेंटाइल मीन्स कि आपका स्कोर जो है वो टोटल जिन्होंने पेपर लिखा है बच्चों ने उनमें से कितनों से आगे है. तो 70 परसेंटाइल मीन्स आपने 70% ऑफ द स्टूडेंट से ज़्यादा स्कोर किया पेपर में, और ओवरऑल परसेंटाइल आपकी 76 होनी चाहिए, ठीक है. सिमिलरली बाकी कैटेगरीज की दी हुई है. अब ये टाइप 3 का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बोधगया में आती है टाइप 1 कट ऑफ, यानी कि वो बच्चे, क्योंकि बोधगया में इंटरव्यू नहीं होता तो डायरेक्टली जिपमैट में जो स्कोर होगा उसके बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा. टाइप 1 कट ऑफ वो कट ऑफ होती है जिसपे बच्चों को डायरेक्टली एडमिशन ऑफर जाता है कि यू हैव बीन सिलेक्टेड, पे दिस फीस एंड रिजर्व योर सीट. टाइप 1 में क्या होता है, बच्चे जिनका कट ऑफ इससे ज़्यादा होगा, जैसे इस बार 333 या उससे ज़्यादा जिसका होगा, उसको सीधा सीधा जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, एडमिशन मिल गया होगा. बट सारे बच्चे जाते नहीं है जम्मू. कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मल्टीपल कॉलेजेस कन्वर्ट करते हैं, इंदौर, शिलोंग, रांची, रोहतक. तो हमेशा वो ट्राई करते हैं कि वो एक अपर बेटर कॉलेज में जाए, जम्मू से भी अच्छा, बोधगया से भी अच्छा, है ना. तो इस केस में वो क्या करते हैं, सीट्स को छोड़ते हैं. जब टाइप 1 कट ऑफ निकलती है और बच्चों को एडमिशन ऑफर दिया जाता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं लेते हैं एडमिशन, यानी कि सीट हो गई वैकेंट. फिर निकलती है टाइप 2 कट ऑफ, ठीक है. GN का मतलब है यहाँ पर जेंडर न्यूट्रल, ओके. एंड SNG है सुपर न्यूमररी गर्ल्स, ओके. तो आप ये देखो कि टाइप 1 कट ऑफ ये निकली, फिर गिरते गिरते, है ना, टाइप 2 कट ऑफ क्या होती है, 290. इससे कितना कम है, 43. तो गिरते गिरते कट ऑफ नीचे भी आती है, ठीक है. तो बोधगया एक ऐसा कॉलेज है जिसकी बहुत लिस्ट निकलती है, 5th, 6th, 7th अभी तक इसकी लिस्ट आने में लगी हुई है. सेम फॉर जम्मू एज वेल, ठीक है. तो मान के चलो कि भाई अगर आप 340 ले आते हो जिपमैट में, बिकॉज जिपमैट ईजी होता है पेपर. इस बार जिपमैट बहुत पहले हो गया था, अप्रैल में 2025 के अंदर. पहले से जिपमैट हमेशा जून या उसके बाद होता था, है ना. बट आपको मान लीजिए कि मई की बिगिनिंग में रेडी रहना एग्जाम के लिए, या अप्रैल की लास्ट वीक में जिपमैट के लिए एटलीस्ट, ठीक है. तो ये चीज़ ध्यान में रखना. कोई डाउट है तो मुझसे पूछना, ठीक है. और ये सब चीज़ें ना आप भी खुद जाके पढ़ सकते हो. आई एम जस्ट हियर टू एक्सप्लेन, ठीक है. आई एम जस्ट ब्रिंगिंग ऑल द डेटा एट वन प्लेस. अदरवाइज आप गूगल पे सर्च करोगे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, आपको मैक्सिमम का डेटा ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है. मैंने भी वहीं से कलेक्ट किया है. IIM जम्मू IPM 2025 कट ऑफ. IIM जम्मू है सेक्शनल कट ऑफ ऑब्वियसली अगेन. IIM जम्मू एक्सेप्ट जिपमैट एग्जाम स्कोर, ठीक हो गया. यहाँ पे भी सेक्शनल कट ऑफ परसेंटाइल होती है, ओके, परसेंटाइल.
तो जनरल 50 परसेंटाइल, डेटा इंटरप्रिटेशन में 50 परसेंटाइल, क्वांट में है ना, एंड वर्बल में भी 50 परसेंटाइल। 50 परसेंटाइल बहुत कम होता है, नहीं कि आधे बच्चों से ज़्यादा मार्क्स लाने, जो कि इजीली आप क्लियर कर ही लोगे। बट इसके भी कोई पर्टिकुलर स्टैट्स नहीं है, ये शिलोंग ने कोई स्टैट्स नहीं दिए ना, वैसे जम्मू के भी कोई स्टैट्स नहीं। बट हाँ, जम्मू के लिए आप मान के चलो भाई, जनरल वाले तो 340 से ज़्यादा लेकर के आओ। अब ये अगेन मैं बोल रहा हूँ, कट ऑफ एंटायरली डिपेंड्स अपॉन कि पेपर कैसा आएगा। क्या पता इस बार जिपमैट पेपर टफ कर दे, कट ऑफ गिर जाएगी। सो मैक्सिमाइजिंग योर स्कोर इज द ओनली सेफ ऑप्शन, ठीक है। अभी भी इसकी शॉर्टलिस्ट निकलने में लगी हुई है। सेफ स्कोर फॉर जम्मू इज 340 प्लस फॉर जनरल। एटलीस्ट स्कोर एज मच एज यू कैन इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी। खासकर जनरल वालों को जितना चाहो उतना स्कोर करो, बिकॉज पास्ट कुछ ईयर्स में ऐसा हुआ है कि नो जनरल मेल इज सिलेक्टेड इन जम्मू। AIR1 इज वेट लिस्टेड। अगर आप 2024 में देखोगे है ना, जो AIR1 था जिपमैट का, वो भी वेट लिस्टेड था पहली लिस्ट में। सोचो आप, क्यों भाई, टॉपर होने के बाद भी वेट लिस्ट है ना। तो ये थोड़ा सा अनफेयर चीज़ें हैं यहाँ पर, इसीलिए जितना ज़्यादा ला सकते हो जिपमैट इस एग्जाम में उतना फ़ायदा। IIM अमृतसर IPM 2025 कट ऑफ। अमृतसर भी नया कॉलेज आया है, ये सिर्फ मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए अलाउड है यहाँ पर। नो स्टैट्स, इसके भी कोई स्टैट्स नहीं है। बट अगेन मैं बोलूँगा कि सेफ 180 से ऊपर लेकर के आओ इंदौर में, और सेक्शनल स्कोर भी अच्छे रखो यार, है ना, सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से करो। देन ये भी IPMAT इंदौर का स्कोर लेता है, नो अदर एग्जाम, ओके। इसकी भी कोई स्टैट्स क्लियरली अवेलेबल नहीं है। बट जिन बच्चों का हमारे यहाँ पे 180 से ऊपर था, उनको लगभग कट ऑफ कॉल्स आ गई थी इंटरव्यू की ना। IFT काकीनाडा IPM 2025 कट ऑफ। तो हाँ, जम्मू बोध गया में इंटरव्यू नहीं होता, IFT काकीनाडा में भी इंटरव्यू नहीं होता। इट प्योरली सिलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर IPMAT इंदौर स्कोर एंड लिटिल बिट ऑफ मार्क्स ये आपको 10-12 के बेसिस पे देता है। जैसे यहाँ पे इसकी जो कट ऑफ आती है काकीनाडा की, अगेन वो ATS के फॉर्म में आती है, ना कि प्रॉपरली इंदौर की तरह लिखा हुआ है कि इस सेक्शन में इतना, उस सेक्शन में इतना। नो, जनरल का ATS होना चाहिए 62.7। 62.7 ATS लाने के लिए IPMAT इंदौर में आपको 61 मस्ट स्कोर समवेयर अराउंड 215 नंबर, 215 प्लस अगर आपका स्कोर है IPMAT इंदौर में टोटल, तो लगभग आप मान के चल सकते हो आपका ATS 62.7 बनेगा। एंड दैट इज हाउ यू विल बी गेटिंग द शॉर्ट लिस्ट इन IFT काकीनाडा। IFT काकीनाडा डायरेक्ट क्या करता है, 78% वेटेज देता है आपके IPMAT इंदौर स्कोर को, 20% वेटेज आपके 10-12 के मार्क्स को, एंड थोड़ा सा वेटेज गर्ल्स के लिए एक्स्ट्रा होता है 2% जेंडर डाइवर्सिटी के बेसिस पे, है ना। IFT काकीनाडा डज नॉट हैव सेक्शनल कट ऑफ्स। दिस इज IFT, ओके। IFT काकीनाडा एक्सेप्ट्स IPMAT इंदौर एग्जाम स्कोर। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन कट ऑफ, इन कॉलेजेस की ना कट ऑफ बच्चे समझ लेते हैं कि भाई जनरल को 62 मार्क्स आने, बस। ये मार्क्स नहीं है, ये कट ऑफ है, ATS कट ऑफ, ओके, नॉट मार्क्स, मैंने क्लियरली लिखा हुआ है। दैट्स ऑल अबाउट दी कट ऑफ्स, ओके। अभी कुछ और भी कॉलेजेस आए हैं इस बार, जैसे कि आपने देखा होगा IIM सिरमौर आया, देन उसके बाद IIM कोईकोड BMS आया, IIM बैंगलोर ऑनलाइन BBA DB आया, राइट। तो अभी IIM बैंगलोर का एक UG कोर्स भी आया है, डेटा साइंस एंड इकोनॉमिक्स वाला, है ना। तो ये जो कॉलेजेस हैं ये IPM के लिए नहीं है, है ना, ये UG कोर्सेज वाले कॉलेज हो गए, BMS वगैरह के लिए, BBA वगैरह के लिए, BSc वगैरह के लिए, है ना। तो द थिंग इज़ कि इनकी कट ऑफ्स भी आते रहेंगी, ऐसे आ गई होंगी, बट मैंने इसमें नहीं इंक्लूड किया बिकॉज वीडियो वुड हैव गॉन वेरी लॉन्ग। अभी ऑलरेडी लॉन्ग हो गई है वीडियो, बट कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक एक जगह पे मिल जाए तो आपको बार बार इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, राइट। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर IPMAT फॉर फ्री, देन देयर आर अ लॉट ऑफ यूट्यूब प्लेलिस्ट, चाहे वो PYQs में आपके वो सॉल्व है, वहाँ पर वर्बल की प्लेलिस्ट है, अलजेब्रा की प्लेलिस्ट है, देन क्वांट की प्लेलिस्ट है, प्रैक्टिस प्लेलिस्ट है, डेटा इंटरप्रिटेशन प्लेलिस्ट है, टॉपर इंटरव्यूज़ हैं, वर्ड पार मीडियज पढ़नी होती है, वहाँ से पढ़ सकते हो। दिस अ लॉट ऑफ फ्री मटेरियल टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर फ्री। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अदरवाइज आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो आराम से। इट्स अ वेरी क्लीन प्लेलिस्ट सेक्शन, ओके। एंड डेली फ्री क्विजेज, ये क्या चीज़ है, ये एक फ्री क्विजेज हैं, डेली इनिशिएटिव है हमारा, जिसमें 15 क्वेश्चंस आपको देते हैं डेली बेसिस पे, जो अगर आप सॉल्व करते हो तो अच्छा खासा वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चंस IPMAT तक कर सकते हो। एंड वी आर फेमस फॉर मेकिंग वेरी रेलिवेंट कंटेंट, ओके। इनफैक्ट 2024 में 25 में 15-20 क्वेश्चंस लगभग जैसे क्लासेस मॉक्स वगैरह में, बुक्स वगैरह में होते हैं, उनसे मैच करते हैं। ऑब्वियसली क्वेश्चंस नेवर रिपीट इन IPMAT, है ना। बहुत रेयरली ऐसा हो सकता होगा कि भाई रिपीट होता है एग्जैक्ट क्वेश्चन विद सेम वैल्यूज़, थोड़ा वैल्यू चेंज करके ऑन द सेम लॉजिक you might get a question, okay, but for that you have to increase your the amount of practice, है ना। those who know more problems know more solutions, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज़्यादा सॉल्यूशंस आपको पता होंगे ना। एग्जाम में भाई क्वेश्चन देखते आपके दिमाग में जितनी जल्दी क्लिक करेगी, ओके मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले किया हुआ है, आपको उतना ज़्यादा जंप मिल जाएगा, isn't it। इसके भी लिंक्स वगैरह मैं टॉप पे डाल दूंगा, है ना। फ्री मटेरियल का एक फ्री क्विजेस का लिंक होगा, देन प्लेलिस्ट का भी लिंक होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट अराउंड कट ऑफ्स, कोई और क्लैरिटी आपको चाहिए तो यू कैन लेट मी नो एंड कीप कमिंग बैक टू iQuanta, सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज नाउ सितंबर ऑनवर्ड्स वील बी ब्रिंगिंग अ फ्री डेली प्रैक्टिस सीरीज, जैसे हमने लास्ट ईयर किया था, 10 क्वेश्चंस एवरी डे, क्वालिटी क्वेश्चंस, थोड़े से थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस, है ना, जिनमें अच्छा मटेरियल आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो डू फॉलो दैट एंड थैंक यू सो मच। डू सजेस्ट मी
कि नेक्स्ट वीडियो में आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।